So hello dear students, in this video we will be discussing about the linear arch or theoretical arch concept. Okay, so you know what is linear arch and what is theoretical arch, and based on this one problem, that is your Eddy's theorem is usually asked in your examinations and semester examination. Okay, so we have to understand what is your linear arch or theoretical arch. So here this is your linear arch or theoretical arch. ये आपके एग्जाम में पूछता है लीनियर आर्च और थियोरेटिकल आर्च, और जनरली एडीज थ्योरम पूछता है, वो आपका एडीज थ्योरम के बारे में लिखिए। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर आर्च और theoretical arch, then some introductory point about this linear arch or theoretical arch is that your first point is very important point is linear arch is an imaginary structure. Linear arch is an imaginary structure which is obtained which is obtained by a funicular polygon, which is obtained by a funicular polygon for for given arch which has all which has all joint like a like truss and loaded at joints only, and loaded at joints only. So linear arch is an imaginary structure which is obtained by follicular polygon for a given arch. अगर जो भी आपका गिवन आर्च दिया हुआ है उसका फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम बनाओगे और वहां से आपको लीनियर आर्च मिलेगा। ठीक है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विच हैज ऑल जॉइंट लाइक ट्रस, जिसके की जो जॉइंट्स होते हैं ना आर्च के, उसके जॉइंट्स कैसे होते हैं, ट्रस के जैसे होते हैं। ट्रस में जो जॉइंट्स होते हैं ना, और लोड्स हमेशा ट्रस में किस पे लगता है, जॉइंट्स पे लगता है। तो आपका लीनियर आर्च में भी आपका जो लोड लगता है वो जॉइंट्स पे ही लगता है ओनली। ठीक है, तो लीनियर आर्च बेसिकली होता है कैसा है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में तो हमने देखा है कि लीनियर आर्च तो कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में जो आर्च का शेप होता है वो कैटेनरी रहता है, वो आपने देखा पैराबोलिक टाइप का शेप रहता है। तो लीनियर आर्च आपका इसलिए हम बोल रहे हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर है विच इज ऑब्टेन्ड बाय फनिकुलर पॉलीगन फॉर अ गिवन आर्च। जो भी आपका गिवन आर्च है उसका फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम बनाते हो तो वहां से आपको लीनियर आर्च मिल जाता है, जिसमें कि सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रस के जैसे होते हैं, और जो लोड्स हमेशा ट्रस पे कैसे लगता है, जॉइंट्स पे ही लगता है। ठीक है, तो linear arch आपका imaginary structure. So this point you have to keep in mind. Okay. Now next point of discussion is all the member of theoretical arch. All the member of theoretical arch subjected to subjected to axial compressive forces to axial compressive forces only, and there is no shear force, and there is no shear force and bending moment, and
bending moment in any member of theoretical arch, in any member of theoretical arch. ओके, तो ऑल द मेंबर ऑफ थ्योरेटिकल आर्च के जो भी सारे मेंबर्स होते हैं सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स होते हैं, ठीक है ना। जो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता है मेंबर में नहीं होता, देयर इज नो shear force, there is no shear force and bending moment, okay, no shear force and bending moment, only जो भी आपका theoretical arch में फोर्सेस कैसे होते हैं, ओनली कॉम्प्रेसिव एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स लगते हैं अकेले, ना ही बेंडिंग मोमेंट लगता है, ना ही शियर फोर्स लगता है किसी भी मेंबर पर theoretical arch के, okay, so this point is also you have to remember, okay, you have to keep in mind, okay, so this is important, 2 points about your linear arch or theoretical arch. Now if imagine a structure consisting of a member, like if I draw certain diagram of theoretical arch, next slide. Now if this is your hinge support here, this is your hinge support here, and we are having a given arch like this is a given arch, okay, and this arch is acting certain loads over this, that is your W1, W2, W3, okay, and this is your span, and this is your line of action of this load W1, line of action of this load W2, line of action of this load W3, okay. Now what is your theoretical arch? So theoretical arch means this is your theoretical arch. If you draw the theoretical arch, then it is a linear arch, means this is your linear here, this is your linear here, W2, this is your linear here, W3, and this is your linear here, W at this point. This is your A point, this is a B point, and here this is your A point, okay, in theoretical arch or linear arch. This is your B point here, okay. So this is your points, this is your points, like in योर ट्रस, ट्रस में आपके कैसे होते हैं जॉइंट्स, आपके जो जॉइंट्स होते हैं हमेशा लोड किस पे लगता है, जॉइंट्स पे लगता है ट्रसेस में, है ना। तो यहाँ पे भी आपका जो लोड लग रहा है थियोरेटिकल आर्च और लीनियर आर्च में, ये जॉइंट्स है, ये आपके दीज आर सर्टेन जॉइंट्स, ओके, ये जॉइंट्स है। तो आपका जो लोड लग रहा है इसकी तो कुल लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये इसका यहाँ पे मैंने जो दिखाया है, ये आपका लोड लग रहा है यहाँ पे व्हाट W1 ईयर, ये आपका लोड कितना है W2 हियर, ये कितना है W3 हियर, okay. Now if this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, okay. Now this is your theoretical arch, अगर आपको कोई आर्च गिवन है उसका आपने theoretical arch बना लोगे with the help of फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम, ये आपका कुछ नहीं है, फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम की मदद से आपके ऑब्टेन हुआ है गिवन आर्च की मदद से, ठीक है ना। और जो भी आपके थ्योरेटिकल आर्च में आपको पता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में इस तरह का कोई आर्च नहीं होता, आपको पता ही है, आर्च का शेप इसी तरह का होता है पैराबोलिक टाइप, बट ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जो कि हमारा फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम से ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। और इसके जो भी जॉइंट्स होते हैं ये आपके ये जॉइंट ट्रस के जॉइंट्स के जैसे होते हैं, ट्रस में आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पिन जॉइंट्स होते हैं सबके, ट्रस के जो पिन जॉइंट्स, तो ये पिन है, हिंज बना हुआ है, पिन बना हुआ है, पिन पिन जॉइंट्स होते हैं इसके भी थ्योरेटिकल आर्च और लीनियर आर्च के। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट और है कि सारे मेंबर जो होते हैं थ्योरेटिकल आर्च के, इस थ्योरेटिकल आर्च के जो भी मेंबर है उसमें अकेला एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स ही एक्ट करता है, नो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अकर्स इन एनी मेंबर, ना एसी मेंबर में शियर फोर्स, ना बेंडिंग मोमेंट होगा, ना सीडी में, ना डीई में, अकेला क्या होगा, एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बना दिया मैंने इसका, इस गिवन आर्च से, दिस इज योर गिवन आर्च, गिवन आर्च, दिस इज योर theoretical theoretical
और लीनियर आर्च। ठीक है, यहाँ पे हमने थियोरेटिकल लीनियर आर्च बना दिया। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एडीज थ्योरम। ओके, सो एडीज थ्योरम, इफ आई एम राइटिंग हियर EDDY, Eddy's theorem. This is important in theoretical form. Okay, in theory form, it is usually asked. So, what is this Eddy's theorem? Eddy's theorem states that it states that if a linear arch, if a linear arch is if a linear arch is superimposed superimposed on a given arch, then bending moment at any section then bending moment at any section on given arch is proportional to the ordinate of intersect between ordinate of intersect between given arch between given arch and theoretical arch। ठीक है, तो एडीज थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट इफ अ लीनियर आर्च इज सुपर इम्पोज्ड ऑन गिवन आर्च, ये आपका गिवन आर्च है, ये आपका थियोरेटिकल आर्च है और लीनियर आर्च है। इस आर्च को, जो आपका फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम से बनता है, इस आर्च को इस गिवन आर्च के ऊपर मैं सुपर इम्पोज कर दूं। सुपर इम्पोज मतलब इसको उठा के पूरे को इसके ऊपर लगा दूं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि तो जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा किसी भी सेक्शन पे, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, देन बेंडिंग मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑन गिवन arch is proportional to the ordinate of intersect between the given arch and the theoretical arch। ये आपका स्टेटमेंट पूछता है कि भाई जो बेंडिंग मोमेंट होगा किसी भी सेक्शन पे गिवन आर्च के, ये आर्च गिवन है आपका, इस पे किसी भी सेक्शन पे एम एक्स की वैल्यू एक्स एक्स सेक्शन काटा, और इस पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? टू द ऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्ट बिटवीन द गिवन आर्च एंड द थ्योरेटिकल आर्च, जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा गिवन आर्च को और थ्योरेटिकल आर्च को। जैसे ये आर्च आप उठाओगे पूरे को और इसके ऊपर जब रखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे गिवन आर्च के इसके इक्वल होगा। मैं अगर इसको क्लियर कर दूं, अगर ये मेरा कोई, मान लीजिए इफ दिस इज योर गिवन आर्च, मान लो ये कोई आपका छोटा सा एक गिवन आर्च है। ठीक है, ये आपका स्पान है, मान लीजिए ये कोई आपका स्पान है, और यहाँ से मैंने क्या करा, इस गिवन आर्च पे क्या करा, लीनियर आर्च को और थियोरेटिकल आर्च को क्या कर रहा हूँ, मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा कोई इस तरह का लीनियर आर्च है। ठीक है, इफ दिस इज योर लीनियर आर्च, ये स्ट्रेट लाइन है, एंड दिस इज योर लीनियर आर्च। ठीक है, ये वाला लीनियर, इस तरह का लीनियर आर्च, और गिवन आर्च कौन सा था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट्स कैसे होते हैं, लीनियर आर्च के पिंड होते हैं, ट्रस के जैसे होते हैं, और जो लीनियर आर्च और थियोरेटिकल आर्च होता है इसमें जो मेंबर्स
इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ओनली एक्सियल कंप्रेशन फोर्स कैरी करते हैं, नो बेंडिंग मोमेंट और नो शियर फोर्स। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ए सी डी ई बी ई, डी ई और ई बी, इनमें जो भी फोर्सेस होंगे इन मेंबर्स में, ये एक्सियल कंप्रेशन फोर्स होंगे, ना ही बेंडिंग मोमेंट होगा ना ही शियर फोर्स होगा। ठीक है, और जो इसके जॉइंट्स होते हैं वो ट्रस के जैसे होते हैं, मतलब पिन जॉइंट्स होते हैं, और लोड हमेशा जॉइंट्स पे ही लगता है। और ये जो आपका थियोरेटिकल आर्च होता है वो आपका इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में इस तरह का कोई आर्च पॉसिबल नहीं होता है। गिवन आर्च इस तरह का ही आप शेप देखते हो हमेशा। ओके, सो दिस इज योर W1 W2 W3, ये आपका थियोरेटिकल आर्च है। अब मैंने क्या करा, ये गिवन आर्च था, यहाँ पे मैं अगर इसको लिख दूं इस साइड, इफ दिस इज योर व्हाट, गिवन आर्च, गिवन आर्च, ये आर्च है, ये आपका क्या है, लीनियर आर्च है, या फिर आप बोल सकते हो थियोरेटिकल आर्च, लीनियर और theoretical arch। ठीक है, दिस इज योर theoretical arch। अब क्या कहती है एडीज थ्योरम, इफ अ लीनियर आर्च इज सुपर इम्पोज्ड ऑन गिवन आर्च देन बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ गिवन आर्च इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्ट बिटवीन द गिवन आर्च एंड द theoretical arch। अब ये कह रहा है कि मान लो ये मैंने कोई गिवन आर्च पे सेक्शन कट किया, मान लो ये दिस इज, इफ यहाँ पे मैंने कोई सेक्शन कट कर लिया, ये मान लो ये आपका एक्स एक्स सेक्शन, गिवन आर्च के यहाँ पे कर दिया, आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, किसी भी आर्च पे के सेक्शन कट कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो ऑर्डिनेट है, दिस इज योर ऑर्डिनेट हियर, इंटरसेक्ट जहाँ से कर रहे हैं, ये जो ऑर्डिनेट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो ऑर्डिनेट है, ये किसके बराबर होगा, बेंडिंग मोमेंट जो होगा इस गिवन आर्च में, बेंडिंग मोमेंट ये प्रोपोर्शनल होगा इंटरसेक्ट, ऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्ट बिटवीन दिस गिवन आर्च एंड द लीनियर आर्च। तो ये आपका मान लो, मैं बोल देता हूँ, अगर ये आपका है P, तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा ना एम एक्स, जो भी आप इक्वेशन लिखोगे एम एक्स की, मान लो ये एम एक्स लिख सकते हो किसी की भी इक्वेशन, एम एक्स की जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होगी वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इस इंटरसेक्ट इस ऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल होगी। तो मतलब बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्ट बिटवीन गिवन आर्च एंड, तो जो एम एक्स होगा बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन किसी पे भी, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इस पी ऑर्डिनेट के, मतलब ऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज योर एडीज थ्योरम। तो P क्या है आपका यहाँ पे, व्हाट इज दिस P, दिस इज व्हाट P, P इज योर इंटरसेक्ट बिटवीन गिवन आर्च एंड द लीनियर आर्च, ये आपका है इंटरसेक्ट बिटवीन गिवन आर्च एंड लीनियर आर्च। सो P की अगर मैं बात करता हूँ, P है आपका इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट बिटवीन गिवन आर्च एंड theoretical आर्च, और गिवन आर्च, हाँ सॉरी, एंड थियोरेटिकल आर्च। ओके, तो ये आपका पता होना चाहिए, ये आपका एग्जाम में पूछता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस, एज दिस इज रिपीटेडली आस्क्ड इन एवरी ईयर। ओके, सो यू just have to understand the concept, what is this theorem saying, that it states that if a linear arch is superimposed on a given arch, means this is a linear arch, if I superimpose this on given arch, then the bending moment at any section, this is your any section xx section, then bending moment at any section is directly proportional to the ordinate of the intersect between given arch and the theoretical arch. This is mx is directly proportional to P. P is the intersect between given arch and theoretical. So that's it. This is our point of discussion. Okay, so linear arch and theoretical arch, it is very important. Okay, so we have covered our almost 80% of unit 5. Okay, now we are left with only influence line diagram for three hinged arches. So influence line diagram, this is your influence line diagram, influence line diagram. Okay, so we have covered our what, linear arch and theoretical arch.
or your Eddy's theorem. So this is your influence line diagram for what? For your three hinged arch, three hinged arches. So we have to draw the influence line diagram for three hinged arches, and we'll study your ILD. This is in short means influence line diagram. Means ILD for horizontal thrust, ILD for horizontal thrust, horizontal thrust. So horizontal thrust means capital H. So we draw ILD for horizontal thrust. Okay. So how we draw the ILD for horizontal thrust, we will see in our further discussion that what is influence lines diagram and on what principle it is based. Okay. So one principle that is your scientist is your Muller-Breslau. So Muller-Breslau principle, this influence line diagram based. Okay. So we will study each and everything in detail, and we also plot our influence line diagram for your bending moment. Influence line diagram ILD for what? Bending moment, bending moment. Okay, so bending moment at any point, say it is C, D, E, F. Okay, so bending moment. Then we'll plot our influence line diagram for ILD for your radial shear too. So it is your radial shear. We also plot our influence line diagram. Okay, and last we plot influence line diagram for your normal thrust also, for your normal thrust. Okay, so normal thrust. So this is a normal thrust, this is a radial shear. Radial shear means we denoted as what? Sx, or your S at any point, say it is C, D, E, F. So if I'm treating as D here, then D here. So normal thrust at D point, we are interested in plotting our influence line diagram. So we will solve, or we will understand the concept of influence line diagram for these four parts: horizontal thrust, then your bending moment, then your radial shear, then your normal thrust. Okay, so if I consider our case 1 influence line diagram for your horizontal thrust. Okay, so for to understand this concept, let me take here influence line diagram for your horizontal thrust. Okay, so ILD for horizontal thrust. So if you are having your three hinged arch, as you already know, this is your first hinge, second hinge, and third hinge is central hinge. Okay, so this is your span. Okay, this is your central rise denoted as H. Okay, if this is your A point, this is your B point, this is your C point, and if I take D point here, and the ordinate of this D point is YD, if this is the ordinate of D point is YD, at a distance of what? A from left end. Okay, and the total span of this arc is L. Okay, and you know the vertical reactions are A here, these are the vertical reactions RB here, and horizontal thrust H here, and again this horizontal thrust H here. Okay, and this is your A distance, A point from left end, and coordinate is YD here. And if I consider a section, if at a distance of X and coordinate is Y, and at this section, this is my section,
and at this section we apply what? 1 kilonewton load. So what we apply? 1 kilonewton load at the section XX. ये आपका जो सेक्शन था XX, इस सेक्शन पे आपने क्या किया है? 1 किलोन्यूटन, 1 किलोन्यूटन का आपने कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाई किया। ठीक है, तो आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है ए पार्ट के लिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए। तो आप क्या करोगे? आपने सेक्शन कट किया एक्स एक्स, दिस इज योर व्हाट? एक्स एक्स सेक्शन at a distance of x from this a point, and coordinate for this x x section is your y here। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, आपने a डिस्टेंस पे क्या किया है? फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट एट पॉइंट डी, आपने एक ए डिस्टेंस लिया है लेफ्ट सपोर्ट से, और डी पॉइंट आपने लिया है, उसका ऑर्डिनेट आपने वाई डी लिया है यहाँ पे। और जो राइज ऑफ द पॉइंट डी इज है वाई डी, जो आपका इसका राइज है, जो वाई डी आपका ऑर्डिनेट है इसका डी पॉइंट का। जैसे सी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? एच, हॉरिजॉन्टल राइज। ठीक है, सेंट्रल राइज। तो आपका वी आर हैविंग टू केसेस हियर, केस वन and your case 2. So in our first case, when your unit load is in portion AC, when your 1 kilonewton load is in portion AC, this is your A point, this is your C point. So in this, in between this region A or C, our 1 kilonewton load acts. Okay, and what is our another case? Another case is, or your 1 kilonewton load is here, is another side, or your unit load is in portion CB here. Okay, in our first case we are having 1 kilonewton load in the region AC, and another case, or 1 kilonewton load is in here C or B. Okay, so look at this case 1. Okay, so when your unit load is in portion AC। ओके, जब आपका यूनिट लोड है वो AC पोर्शन में है। ठीक है, A और C के बीच में हमने बनाया यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन का पोर्शन में है। तो आपने क्या करना है? अब आपको क्या करो कि भाई ये आपका B पॉइंट है, B पॉइंट आपको पता है हिंज है, या ए पॉइंट हिंज है, तो आप बी पॉइंट के वन मोमेंट ले लो। समेशन ऑफ मोमेंट्स एट बी, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, आप जीरो कर दो एक बार। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर ए मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा। ठीक है, आर ए मिल जाएगा, तो आप मोमेंट की इक्वेशन लिख लीजिए आप, व्हाट? आर ए इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल, तो आर ए इंटू एल। ठीक है, नाउ 1 किलो न्यूटन लोड एक्ट कर रहा है, इसके अबाउट बी के अबाउट कैसे जाएगा? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जाएगा, मतलब 1 किलो न्यूटन, तो माइनस का जाएगा 1 इंटू ये डिस्टेंस कितनी बची यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल है एल, और ये है एक्स, तो एल माइनस एक्स बची इतनी डिस्टेंस। सो इट इज योर आर ए इंटू एल माइनस 1 किलो न्यूटन इंटू वॉट? एल माइनस एक्स। ये आपकी हो गई मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, क्या हो जाएगा? एल माइनस एक्स अपॉन एल। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ आर ए। ऑल्सो आप ए के अबाउट मोमेंट जीरो कर दो, तो आर बी इंटू एल, ओके, माइनस 1 इंटू वॉट? एक्स, ये मिलेगा। एक इक्वेशन, अगर मैं मोमेंट एट ए के अबाउट, ए भी आपका कैसा है? हिंज सपोर्ट है, तो हिंज के अबाउट, चाहे वो ए के अबाउट आप जीरो करो, बी के अबाउट जीरो करो, आर ए आर बी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपने आर ए की यहाँ से निकाली, बी के अबाउट मोमेंट जीरो करके, आर ए की भी निकालनी है आपको। ओके, और आर बी की भी निकालनी है, आर ए निकल गया, आर बी की निकालोगे तो ए के अबाउट मोमेंट जीरो कर दो। तो इक्वेशन लिखिए अब इसका, पेंडिंग मोमेंट मोमेंट करो ए के अबाउट, क्या होगा? व्हाट? ए के अबाउट मोमेंट ले लीजिए आप, ए के अबाउट मोमेंट होगा ये आर बी इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल। अगर ये एंटी क्लॉक है, मान लो मैं माइनस ले लेता हूँ, तो इफ माइनस आर बी इंटू एल हियर, और क्या लोड लग रहे हैं? ऊपर से आ रहा है ये एंटी क्लॉक को मान लो मैंने माइनस लिया है, तो क्लॉक को मैं क्या लूंगा? प्लस, तो 1 इंटू इसके अबाउट, 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी? एक्स।
तो इट इज +1 × x = 0। यहाँ से आप आरबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -x/-l, तो माइनस माइनस गया, आपका आरबी = व्हाट, x/l। आर आया आपका l-x/l, आपका जो आरबी आया है वो कितना है, x/l। नाउ टेकिंग मोमेंट एट सी, इस सी पॉइंट के हुए और मोमेंट ले लो आप एक बार, तो आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिल जाएगा, एच की वैल्यू आपको पता है। सो समेशन ऑफ मोमेंट एट सी = अगर आप 0 कर दो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से ले लो, राइट से ले लो, राइट से आप लिख लीजिए इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ से कर लो आप, ये हो गया, अगर एंटी क्लॉक नेगेटिव ले तो -RB इंटू ये कितनी डिस्टेंस होगी, l/2, ये कितना होगा, l/2 होगा ना, आधा ये टोटल l है, तो l/2, तो इट इज -RB इंटू l/2। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा इसके अबाउट ये सी पॉइंट पे, ये कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मैंने माइनस लिया तो क्लॉक को मैं लूंगा प्लस, तो +h इंटू ये जो आपका ऑर्डिनेट है वो है स्मॉल h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल h, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। और यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना हो जाएगा, so this is your h is equal to कितना आ जाएगा, x/2h आ जाएगा, x/2h। ओके, दिस इज योर लीनियर। ओके, यहाँ से आप सॉल्व कर लो, कैपिटल H इज इक्वल टू -h गया अपॉन l/2, RB की वैल्यू पुट कर दो आप x/l। ओके, तो यहाँ से आप आरबी की वैल्यू पुट करो और कैपिटल एच की वैल्यू निकालो, तो आपने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी निकाल दी, x/2h। नाउ इफ I apply a boundary condition when x is equal to 0, x की वैल्यू 0 पे h की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ, h की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 ही मिलेगी। ठीक है, ना अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, अगर हाफ कर दूं, l/2 कर दूं, तो when x is equal to अगर मैंने कर दिया l/2, तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट x की वैल्यू में पुट करो l/2, तो l/2 इंटू 2 4, तो l/4h, तो जो आपका कैपिटल H मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, l/4h। ओके, तो यहाँ से आपने दो कंडीशन लगाई, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l/2, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का ऑर्डिनेट लिख लिया। नाउ केस 1 हमारा खत्म हो गया। नाउ इफ आई एम टेकिंग अवर केस 2, व्हेन योर यूनिट लोड इज इन पोर्शन CB, इस CB पोर्शन में अगर आपका यूनिट लोड है तो आप क्या करना है, मोमेंट एट C कर दो आप 0, लेफ्ट से ले लो, इस लेफ्ट से ले लो, मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0 कर दो, और आप यहाँ से H की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इस बार केस 2, when unit load is in portion CB। ओके, तो आपका CB पोर्शन में अगर आपका ये आपका CB पोर्शन, यहाँ पे CB पोर्शन में अगर आपका यूनिट लोड है, तब आपका क्या होगा, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू 0, लेफ्ट से अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट से आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर CB पोर्शन में 1 किलोन्यूटन लोड है, ठीक है, CB पोर्शन में, ठीक है? और लेफ्ट से अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आप वैल्यू लिख लीजिए, RA इंटू वॉट, l/2, RA इंटू C पॉइंट के वो l/2, दिस इज l/2, RA इंटू l/2 माइनस H इंटू स्मॉल h इक्वल टू 0, तो आप लिख लीजिए यहाँ से, therefore RA इंटू l/2 माइनस h इंटू वॉट, कैप स्मॉल h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप h इंटू h की वैल्यू लिख दो, l माइनस एक्स अपॉन l इंटू l/2।
ठीक है। आर ए की वैल्यू आपने लिख दी एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन टू, ये आपका एच इंटू एच की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप एच निकाल लो, कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स अपॉन वॉट टू, और ये एच टू एच। यहाँ से एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एल, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बच गया एल माइनस एक्स अपॉन टू इंटू एच। तो यहाँ से आप ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकाल लेते हो। अब आप यहाँ से फिर से बाउंड्री कंडीशन लगा दो, व्हेन एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर दो, या फिर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे, तो आप छोड़ो, अब एक्स की वैल्यू एल बाई टू पुट कर लो। एक्स की वैल्यू जीरो करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, एल अपॉन टू एच मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एल अपॉन टू एच। अब एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए एल बाई टू। ओके, एक्स की वैल्यू एल बाई टू पुट करोगे तो ये कितना बचेगा, एल माइनस एल अपॉन टू, तो टू एल माइनस एल, तो इस एल अपॉन टू, तो एल अपॉन टू और नीचे भी टू है तो एल अपॉन फोर एच बन जाएगा। यहाँ से आपका एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एल अपॉन फोर एच। एक्स की वैल्यू आपने पुट करी एल अपॉन टू, एच की वैल्यू मिल गई आपको एल अपॉन फोर एच। ना अगर एक्स की वैल्यू में पुट करता हूँ एल, एक्स की वैल्यू मैंने पुट करा एल, तो एल माइनस एल इज वॉट जीरो, तो एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, जीरो मिलेगी। तो आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है, अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट डी पॉइंट के लिए, तो आपका बस किस तरह का शेप आएगा, वो शेप आएगा डी पॉइंट का ये सिंपल ट्रायंगुलर। ओके, ये ऑर्डिनेट जो है डी पॉइंट पे जो ऑर्डिनेट है, ये होगा आपका व्हाट एल अपॉन फोर एच। दिस इज योर ऑर्डिनेट, एंड दिस इज ऑब्वियसली योर सेगिंग, एंड दिस इज इन प्लस साइन। तो ये आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एच डी, ये आपने डी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है फॉर योर, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, this is C point. Okay, and in this, in our earlier videos, we have already discussed our numerical part of arches, and now we will solve and understand the concept for bending moment and your radial shear and your normal thrust. Okay, in our next video. So stay tuned. Thank you so much.